Now today we'll be dealing with the topic of transfer of the suits. It is a very simple topic, nothing much nuanced in it. But in order to write a good answer relating to transfer of the suits, you have to be aware about the judicial pronouncements that relate to it. Other than that, you have to understand that under what circumstances the court will exercise its judicial discretion in the favor of transfer of a suit. Alright. And as far as the persons who are concerned with the practice portion only, for them this point is very important because that would form an important part of their practice matters, because often matter comes which desires transfer of suit from one district to another, and if you are practicing in Supreme Court, often matter comes, especially in the matrimonial cases, where the plea is that the case should be transferred from one state to another. All right. So you have to be aware regarding it all in all. It is a very important thing, but it is simple nonetheless. So let us first complete section 22 to 25. All right. We will start with section 22. It is power to transfer suits which may be instituted in more than one court. Where a suit may be instituted in any one of two or more courts and instituted in one of such courts, any defendant, after notice to the other parties, may, at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement, apply to have the suit transferred to another court, and the court to which such application is made, after considering the objections of the other party, shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed. ठीक है, तो इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है और अवेयर रहना है कि अगर सूट मान लीजिए किसी कोर्ट में इंस्टीट्यूट होना चाहिए था, वहां इंस्टीट्यूट नहीं है, तो डिफेंडेंट वो व्यक्ति है जो आफ्टर गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टीज, इशू सेटल होने के पहले, ही कैन अप्लाई द सूट टू बी ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट. ठीक है, उस कोर्ट में जहां पे केस ट्रांसफर होना चाहिए. सो इसमें दो चीजों को लेके अवेयर रहिएगा. डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस, एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस, मार्क दिस वर्ड, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. ठीक है, एट बिफोर और एट सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बाद नहीं. ही कैन अप्लाई टू हैव द सूट ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट, and the court to which the application is made, after considering the objection of the parties, if any, अगर मान लीजिए दूसरी पार्टीज ऑब्जेक्शन करती हैं, तो ऑब्जेक्शन को कंसिडर होने करने के बाद इट कैन डिसाइड कि आउट ऑफ सेवरल कोर्ट्स विच कोर्ट shall have jurisdiction to proceed in the suit. Up to what court the application lies. Section 23. When several courts having jurisdiction are subordinate to the same appellate court, the application under section 22 shall be made to the appellate court. ऐसा मान लीजिए अगर जो सेवरल कोर्ट्स हैं वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के हैं, और वो सारे सिविल जज जूनियर डिवीजन के जो कोर्ट हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर आते हैं, देन द एप्लीकेशन विल लाई टू द अपेलेट कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज. ये फॉर एन इलस्ट्रेशन आप यूज कर सकते हैं. एग्जामिनेशंस में यू हैव टू बी अवेयर कि एप्लीकेशन किसके पास लाई करेगी. व्हेन सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम अपेलेट कोर्ट, सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट एक ही अपेलेट कोर्ट के अंडर आते हैं, तब एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 शैल बी मेड बाय द डिफेंडेंट टू दैट अपेलेट कोर्ट. वेयर such courts are subordinate to different appellate courts but the same high court, then the application shall be made to the said high court. And where the courts are subordinate to different high courts, the application shall be made to the high court within local limits of whose jurisdiction the court in which the suit brought is situated. ये last line मार्क कर लीजिएगा. इसका बेसिकली मतलब ये है कि जिस स्टेट में सूट लाया गया है उसी स्टेट का हाई कोर्ट कंसिडर करेगा. ठीक है, अब एक सिचुएशन इमेजिन करिए. अब एक केस है, एक केस में दो प्लेंटिफ हैं और दो डिफेंडेंट हैं, और एक डिफेंडेंट कहता है कि ये जो केस है ये इस स्टेट में एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए. मान लीजिए स्टेट ऑफ यूपी में एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए, ये स्टेट ऑफ दिल्ली में एंटरटेन किया जाना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी एंटरटेन इन दिल्ली. अब वो क्या करेगा कि सूट कहां लाया गया है ये देखेगा.
अब सूट लाया गया है उत्तर प्रदेश में, तो एप्लीकेशन किसके पास लाया करेगी? इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास, दिल्ली हाई कोर्ट के पास नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट कंसिडर करेगा कि किस हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए। सो that is what is meant by subsection 3. It says where courts are subordinate to different high courts, the application shall be made to the high court within the local limits of whose jurisdiction the court in which suit brought is situated. जिसके यहाँ सूट लाया गया है वो कोर्ट किस हाई कोर्ट के अंडर आता है, उसी हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन जाएगी. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस सेक्शन. ठीक है, तो ऑल इन ऑल फ्रॉम सेक्शन 22 टू सेक्शन 23 ये ध्यान में रखिएगा कि डिफेंडेंट को नोटिस देनी है जो ट्रांसफर सीक कर रहा है, और वो नोटिस सारी पार्टीज को देनी है. साथ में जो उसे ये जो ट्रांसफर का पॉइंट उठाना है ये अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे उठाना है. इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट. किस कोर्ट के पास एप्लीकेशन लाए करेगी इसका ध्यान रखना है. अगर सारे कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेम appellate court then that appellate court. If सारे कोर्ट्स, if such courts are subordinate to different appellate courts then the high court. If the courts are subordinate to different high courts then application shall be made to the high court within the local limits of whose jurisdiction the court in which suit brought is situated. Next we come on section 24, that is general power of transfer and withdrawal. On application of the parties and after notice to the parties and after hearing such of them as desired to be heard, or of its own motion without such notice, the high court or district court may at any stage. अब इसमें क्या क्या मार्क करना है आपको इन 3 लाइन में. ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज भी हो सकता है, चाहे वो डिफेंडेंट या प्लेंटिफ हो, या कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन भी कर सकता है. अंडर सेक्शन 24 एप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है, ऑन इट्स ओन मोशन भी हो सकता है. ऑन इट्स ओन मोशन मतलब क्या, सू मोटो भी कर सकता है वो. ठीक है, खुद से ही चाहे तो कर सकता है. और अगर सू मोटो करता है देन इट डज नॉट नीड द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस टू द पार्टीज. ठीक है, और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों कर सकते हैं और किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं. सो यू मार्क द वर्ड्स हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट एनी स्टेज एंड मार्क द वर्ड्स एप्लीकेशन एंड ऑफ इट्स ओन मोशन. ओन मोशन होगा तब नोटिस की जरूरत नहीं होगी टू द पार्टीज. ठीक है, देन वी कम टू क्लॉज ए विच सेज ट्रांसफर ऑफ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same. B. Withdraw any suit or appeal or other proceeding pending in any court subordinate to it and try or dispose of the same, or transfer the same for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same, or retransfer the same for trial or disposal to the court from which it was withdrawn. तो क्लॉज ए में ये मेंशन किया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट है इट कैन ट्रांसफर एनी सूट और अपील और एनी प्रोसीडिंग जो उसके सामने पेंडिंग हो या किसी उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने पेंडिंग है, और वो वहां से ट्रांसफर कर सकता है वो सूट, अपील और प्रोसीडिंग टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द प्रोसीडिंग. ठीक, वैसे ही क्लॉज बी कहता है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी सूट, अपील और प्रोसीडिंग जो उसके किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग है, इट कैन आफ्टर विड्रॉल ट्राई एंड डिस्पोज ऑफ द सेम, मतलब खुद ट्राई और डिस्पोज ऑफ कर सकता है. दूसरा, उसको ट्रायल के लिए ट्रांसफर कर सकता है टू एनी अदर कोर्ट विच इज सबऑर्डिनेट टू इट और जिसके पास कॉम्पिटेंसी है उस केस को ट्राई करने की, या विच कैन डिस्पोज ऑफ दोज प्रोसीडिंग. ठीक है, और इट कैन रीट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल, मतलब एक बार ट्रांसफर करने के बाद इट कैन अगेन ट्रांसफर इट टू समबडी हु इट थिंक्स इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, मतलब रीट्रांसफर की भी पावर है. ठीक है, डू नॉट थिंक कि एक बार ट्रांसफर कर दिया तो उसके आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता. क्लॉज बी का सब क्लॉज 3 देखिएगा, वो सीधे कहता है कि रीट्रांसफर भी कर सकता है इफ इट सो वांट्स. और वो रीट्रांसफर करके केस किसको दे सकता है, उसको भी दे सकता है जिससे उसने प्रोसीडिंग विड्रॉ की थी. ठीक है, सो रीट्रांसफर इज अलाउड
to that extent that it can transfer the same for trial or disposal to the court from which it was withdrawn. जिससे withdraw किया था उसी को वापस भी दे सकता है by retransfer. So retransfer back to the same court is allowed. So retransfer की power भी recognize की गई है. ठीक? Then we come to subsection 2. It says where any suit or proceeding has been transferred or withdrawn under subsection 1, the court which is thereafter to try or dispose of the suit or proceeding may, subject to special directions in the case of an order of transfer, either retry it or proceed from the point it was transferred or withdrawn. So basically subsection 2 of section 24 में ये बताया गया है कि जब मान लीजिए कोई केस किसी जज के बाद थ्रू ट्रांसफर आया है तो वो चाहे तो उसे रीट्राई कर सकता है शुरुआत से, या मान लीजिए अगर इशू सेटल हो गए हैं और केस एक पॉइंट पे उनके पास ट्रांसफर हुआ है तो उस पॉइंट से भी वो स्टार्ट कर सकता है. अब इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझिए. रीट्रायल तो आपके लिए समझना आसान है कि वो चाहे तो पूरी प्रोसीडिंग शुरुआत से शुरू करवा सकता है जिसके पास ट्रांसफर हुआ है. इट इज ऑल सब्जेक्ट टू द स्पेशल डायरेक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द हाई कोर्ट एज द केस में भी. ठीक है, ये सारी चीजें सब्जेक्ट टू स्पेशल डायरेक्शंस हैं. अब मान लीजिए एक कोर्ट है, उसने सारी प्रोसीडिंग्स होने के बाद प्लेंट एडमिट हो गई, रिटन स्टेटमेंट एडमिट हो गया, फर्स्ट हियरिंग हो गई, फिर इशू भी सेटल हो गए और एक इशू डिसाइड हो गया. 4 इशू सेटल हुए मान लीजिए, 4 में से एक इशू डिसाइड हो गया और उसके बाद केस ट्रांसफर कर दिया उस कोर्ट से किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास. अब जिस कोर्ट को केस ट्रांसफर किया गया है वो चाहे तो शुरुआत से भी ट्राई कर सकता है, या वो चाहे तो जिस पॉइंट पे फॉर्मर कोर्ट में प्रोसीडिंग खत्म हुई थी, क्योंकि जब वहां से ट्रांसफर हुआ था तो एक इशू सेटल हो चुका था, तो वो वहां से भी शुरू कर सकता है जहां से एक इशू सेटल हो चुका था, वो बाकी के इशू ट्राई कर ले. ठीक है, इट इज ओपन टू द ट्रांसफर्ड कोर्ट, इट कैन डू सो एंड प्रोसीड फ्रॉम द पॉइंट एट विच द केस वॉज ट्रांसफर्ड. ठीक है, या विड्रॉ किया गया था. ये सिचुएशन अवेलेबल है पूरी तरीके से. नाउ ऑल इन ऑल इट इज सब्जेक्ट टू स्पेशल डायरेक्शन. अब देखिए ये जो ऑप्शन है ना, आइदर रीट्राई और प्रोसीड फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम विच वॉज ट्रांसफर और विड्रॉन, इसका मतलब है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ने स्पेशल डायरेक्शन ये दे दिया कि यू हैव टू रीट्राई इट, तब इट कैन नॉट प्रोसीड फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम विच वॉज ट्रांसफर्ड और विड्रॉन. अगर रीट्रायल का डायरेक्शन दिया गया है तो रीट्रायल करना पड़ेगा. वैसे ही अगर स्पेशल डायरेक्शन में ये लिख दिया है कि यू हैव टू प्रोसीड फ्रॉम द पॉइंट वेयर द प्रोसीडिंग्स वर लेफ्ट ऑफ, तो वहां से प्रोसीड करना जरूरी है. ठीक है, तो ऑल इन ऑल ये जो दोनों चीजें हैं, रीट्रायल एंड प्रोसीडिंग फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम विच वाज ट्रांसफर्ड, ये सब्जेक्ट टू स्पेशल डायरेक्शन. तो स्पेशल डायरेक्शन वर्ड मार्क कर लीजिएगा. स्पेशल डायरेक्शन किसके? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के, जिसने भी ट्रांसफर किया है एज द केस में बी. देन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कोर्ट्स ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, and proceedings include the proceedings for execution of decree or order. Next point is the court trying any suit transferred or withdrawn under this section from a court of small cause shall for the purpose of the suit shall be deemed to be a court of small cause. यहाँ पे deemed to be a court of small cause याद रख लीजिएगा. ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी कोर्ट से मैटर ट्रांसफर करके कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज को दिया गया है, या स्मॉल कॉज कोर्ट से कोई भी मैटर ट्रांसफर करके किसी दूसरे कोर्ट को दिया गया है, देन इट वुड बी डीम कि जिस कोर्ट को वो केस दिया गया है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, वो भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज है, प्रोवाइडेड दैट कि वो केस ऐसा है विच फॉल्स विद इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस. ठीक है, ये भी होना चाहिए. वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वहाँ पे एक इशू ऐसा अराइज हुआ कि जो केस था स्मॉल कॉज कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर था और इसी वजह से सब सुपीरियर कोर्ट ने उसे ट्रांसफ़र कर दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर उसके जुरिडिक्शन से कोई मैटर बाहर है और फिर वो प्रॉपर कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में देन दैट कोर्ट विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज. ये उन्हीं चीज़ों के लिए रेलेवेंट होगा जहाँ पे कोई ऐसा मैटर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज से ट्रांसफ़र किया गया है विच फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज. ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज किसी केस में टाइटल डिसाइड कर रहा है और कोई ऐसा सूट है जो टाइटल सूट है,
इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है और पोजेशन के लिए, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज कांट ट्राई इट। अब ये ऑब्जेक्शन लिया गया, मान लीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी पावर ऑफ ट्रांसफर एक्सरसाइज करते हैं, तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज से वो केस ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा? सिविल कोर्ट में जाएगा। अगर वो सिविल कोर्ट में गया तो सिविल कोर्ट क्या कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज माना जाएगा? नो, इट वोंट बी, तब नहीं माना जाएगा, क्योंकि इट इज़ ओनली द सिविल कोर्ट विच हैज़ द पावर टू डिसाइड द टाइटल विद रिगार्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये क्लॉज उस कंटेक्स्ट में है कि कोई ऐसा केस ट्रांसफर किया गया है जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है, प्रॉपर जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। अगर वो उसके प्रॉपर जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है और फिर वो केस उनसे उठा के कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज से उठा के किसी और कोर्ट को ट्रांसफर किया गया है, तो दूसरा कोर्ट भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज माना जाएगा। ठीक है, अज्यूमिंग कि वो उसके प्रॉपर जुरिस्डिक्शन में आता है, वैसे ही जैसे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के जुरिस्डिक्शन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज a suit or proceeding may be transferred under this section from a court which has no jurisdiction to try it. Self explanatory. अब हम आ जाते हैं सेक्शन 25 पे, which is the power of the Supreme Court to transfer suits etc. On application of a party and after notice to the parties and after hearing of them as desired to be heard, the Supreme Court may at any stage mark कर लीजिए, on application of the party mark कर लीजिए, and notice mark कर लीजिए, if satisfied that the order under this section is expedient for the ends of justice. Mark the words ends of justice. कि the Supreme Court is exercising its power of transfer in order so that the ends of justice may be protected. ठीक है, that is why the Supreme Court is transferring it. तो ends of justice को mark करिए. Next, direct that any suit, appeal or other proceeding be transferred from High Court or other civil court in one state to high court or other civil court in another state. ठीक है, then we come to subsection 2 of section 25. It says every application under this section shall be made by a motion which shall be supported by an affidavit. जरा सिंपली बता देता हूँ ये सारी चीजें क्या होती हैं. A motion is a short statement which is not under oath asking the court to grant the relief wanted and citing a legal authority that allows the court to take such action. While an affidavit is a statement of fact which is based on personal knowledge, information and belief of a person and which is sworn on oath, it is then presented to the court in a prescribed form. और भी सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि देखिए, मोशन इज बेसिकली दैट यू आर आस्किंग द कोर्ट टू डू समथिंग, कोई रिलीफ मांग रहे हो उससे कि आप कुछ ऐसी चीज करो, तो ट्रांसफर के कंटेक्स्ट में आप क्या मांग रहे होगे? ट्रांसफर मांग रहे होगे, है ना. अब एफिडेविट में क्या होगा? एफिडेविट के अंदर यू विल हैव द ग्राउंड्स, बिलीफ और इंफॉर्मेशन विच इज सॉर्न ऑन ओथ दैट विल सपोर्ट द मोशन. ठीक है, so always remember, motion is a short statement which is not under oath asking the court to grant relief wanted, and you cite a legal authority in support of the motion that allows the court to take such an action. Then you will support it by a what? By an affidavit. एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि मोशन का क्या मतलब है, एफिडेविट का क्या मतलब है. ये प्रैक्टिस में आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, देन यू विल बी अवेयर रिगार्डिंग इट. एग्जाम में ये सारी चीज़ें नहीं पूछा जाती. बस एग्जाम में ये ध्यान रखिएगा कि ये लाइन लिखनी है कि एप्लीकेशन शैल बी सपोर्टेड बाय अ मोशन एंड एन एफिडेविट. वैसे ही मोशन कैन ऑल्सो बी समथिंग, एक और चीज़ बता दूं, मोशन कैन ऑल्सो बी समथिंग इन विच यू आस्क द कोर्ट टू डू समथिंग, कोई पर्टिकुलर चीज़ करे वो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप मोशन पढ़ें, ये ऑफ इट्स ओन मोशन के कंटेक्स्ट में ना पढ़ें जो सू मोटो है कि वो खुद से कर सकता है. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. यहाँ पे जो मोशन शब्द यूज़ हुआ है ये लीगल कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है. ठीक है, और जब भी लीगल कंटेक्स्ट में आप बात करते हैं तो मोशन इज कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट स्टेटमेंट विच इज़ नॉट अंडर ओथ इन विच यू आस्क द कोर्ट टू आइदर grant you relief or decide upon a particular issue, and you cite a legal authority that allow the court to take such an action. Now that can be the statutory basis or a legal precedential basis, it could be anything. ठीक है, एफिडेविट आप जानते ही हैं क्या होता है. Then we come to subsection 3. It says the court to which the suit, appeal or other proceeding is transferred shall subject to any special directions in the order of transfer either retry it or proceed from the stage at it was transferred. ठीक है,
In dismissing any application under this section, the Supreme Court may, if it's of the opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by the way of compensation to any person who has opposed the application such sum not exceeding 2000 rupees as it considers appropriate in the circumstances of the case. अभी जो फ्रिवलेस और वेक्शिशियस जो टर्म है ना, ये आपको अक्सर कोर्ट बोलता मिलेगा कई मैटर्स में. इसका मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रिवलेस का लिटरल मतलब होता है कि किसी चीज़ की जब कोई सीरियस पर्पस या वैल्यू ना हो, या कोई तुच्छ बात कोई कह रहा हो, देन दैट इज कॉल्ड फ्रिवलेस. वेक्शिशियस का मतलब होता है किसी को तंग करना, हैरास करना, अनॉय करना, फ्रस्ट्रेट करना. ठीक है? तो फ्रिवलियस और वेक्शिशियस लिटिगेशन क्या होता है कि व्हेन द लिटिगेशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड विद द इंटेंशन ऑफ हरासिंग द अपोनेंट. ठीक है? या कोई ऐसा मोशन पुट किया गया है विच इज विद द इंटेंशन ऑफ हरासिंग, अनॉइंग और फ्रस्ट्रेटिंग द अपोनेंट, तो आप कह सकते हैं इट इज वेक्शिशियस इन नेचर. और उसके साथ फ्रिवलेस भी जुड़ा होता है. अक्सर फ्रिवलेस वो होता है कि मान लीजिए एकदम एकदम तुच्छ बेकार सा ग्राउंड लिया है, विच इज एकदम गार्बेज. अगर आप सीधे उसे कंसिडर करो, इट्स एब्सोल्युटली अ फार्स और इट्स कैवल इन नेचर. ठीक है? कैवल का मतलब होता है मेकिंग पेटी और अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस. तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, फ्रिवलेस वाले पॉइंट में जाएंगे तो आपको एक टर्म ऑफन सुनने को मिलेगा, दैट इज फ्रिवियस एंड वेक्शिशियस लिटिगेशन. ठीक है? तो यहीं पे बोला जा रहा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो एप्लीकेशन थी वो फ्रिवलेस या वेक्शिशियस थी, then it may order the applicant to pay by the way of compensation to any person who has opposed the application such sum not exceeding 2000 rupees. Then it is said that the law applicable to any suit, appeal or other proceeding transferred under this section shall be the law which the court in which the suit, appeal or other proceeding was originally instituted ought to have applied to such suit, appeal or proceeding. तो चलिए, हमने तो सेक्शंस तो कर लिया, अब जरा जुडिशियल लॉ पे आ जाते हैं. द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू एलैबोरेट इज द केस ऑफ मेनका संजय गांधी वर्सेस रानी जेठमलानी. ठीक है? It was reported in 1979, volume number 2, Supreme Court Reporter, page number 378. In this case, the Supreme Court said, assurance of fair trial is the first imperative of dispensation of justice, and the central criteria for the court to consider whether a motion for transfer is made or not is not the hypersensitivity or relative convenience of the party or easy availability of legal services or like mini grievances. Something more substantial, something more compelling, more imperiling from the point of view of the public justice and the attendant environment is necessitous if the court is to exercise its power of transfer. This is the cardinal principle, although the circumstances may be myriad and vary from case to case. Basically, the Supreme Court is saying primary purpose of the court is to do justice, or assurance of the fair trial to the parties is the first principle of justice. बिना फेयर ट्रायल के जस्टिस नहीं हो सकता. तो जब भी ट्रांसफर का मोशन कोर्ट कंसिडर करेगा तो वो पार्टीज की हाइपर सेंसिटिविटी या उनकी कन्वीनियंस या इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल सर्विसेज या उनकी मिनी ग्रीवेंसेस को कंसिडर नहीं करेगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को. वो एक सब्सटैंशियल ग्राउंड को कंसिडर करेगा जो पब्लिक जस्टिस के व्यू से कोर्ट को लगता है कि अगर उसने केस ट्रांसफर नहीं किया तो वन वे और द अदर जस्टिस विल बी अफेक्टेड, ओनली देन इट विल ट्रांसफर द केस. ठीक है? ये पॉइंट इस केस में हेल्ड हुआ था. सिमिलर वॉज द केस ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस रामकृष्ण हेगड़े, reported in 1990, volume number 1, Supreme Court cases, page number 4. Dealing with the power of the Supreme Court to transfer a case under section 25 of the CPC, it was held that under the old section, the state government was empowered to transfer the suit, appeal or other proceeding pending in a high court of the state to any other high court on receipt of a report from the judge trying or hearing the suit that there existed a reasonable ground for such transfer
provided the state government or state in which the other high court had its principal seat consented to transfer. ठीक है, ये पुराना सीपीसी की बात कर रहे हैं. कहते हैं लेकिन नई सीपीसी में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, द प्रेजेंट सीपीसी in which section 25 confers the power of transfer on the Supreme Court and is of wide amplitude. Under the present provision, the Supreme Court is empowered at any stage to transfer the suit, appeal or other proceeding from a high court on or other civil court in one state to a high court or other civil court of another state if it is satisfied that such an order is expedient for the ends of justice. The cardinal principle for the exercise of power under this section is that ends of justice demand the transfer of the suit, appeal or other proceeding. The question of expediency would depend on the fact and circumstances of each case, but the paramount consideration for the exercise of power must be to meet the end of justice. It is true that if more than one court has jurisdiction under the CPC to try the suit, the plaintiff as dominus litis का मतलब होता है master of the suit. The plaintiff as dominus litis has a right to choose the court, and the defendant cannot demand that suit be tried in any particular court convenient to him. The mere convenience of the parties or any one of them may not be enough to exercise the power of transfer, but it must also be shown that trial in the chosen forum will result in denial of justice. ये भी दिखाना चाहिए कि अगर उस फोरम में ट्रायल हुआ जहां पे होने जा रहा है तो जस्टिस डिनाई हो जाएगा. ये पैरामाउंट कंसिडरेशन होगा कोर्ट के लिए. Cases are not unknown where a party seeking justice chooses a forum most inconvenient to the adversary with a view of depriving that party of a fair trial. मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें ऐसे बहुत केसेस देखने को मिले हैं जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को इनकन्वीनियंस देने के लिए और जिससे फेयर ट्रायल या ना हो सके वो केसेस को ट्रांसफर करवाती हैं. द पार्लियामेंट हैज देयरफॉर invested the Supreme Court with the discretion to transfer the case from one court to another if that is considered expedient to meet the ends of justice. Words of wide amplitude for the ends of justice has been advisedly used to leave the matter to the discretion of the apex court, as it is not possible to conceive all situations requiring or justifying the exercise of power. But the paramount consideration must be to see that justice according to law is done. If for achieving that objective the transfer of case is imperative, there should be no hesitation to the transfer of the case, even if it is likely to cause some inconvenience to plaintiff. The petitioner's plea for the transfer of the case must be tested on this touchstone. ये basic criteria बनेगा ends of justice. तो आपको एग्जामिनेशन के लिए इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है. आई विल टेल यू मोर पॉइंट्स. अनदर क्लासिक केस ऑन प्रिंसिपल गवर्निंग ट्रांसफर एंड विड्रॉल विच इज अंडर सेक्शन 24, 25 का तो बता दिया, 24 पे क्या है, दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक वर्सेस केमिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी. लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू व्हाट हैपेंड इन दिस केस. In this case, a civil suit was sought to be transferred from the court of District Judge Madhya Pradesh to the file of High Court at Madras, where another suit is pending and material issues in both suits were common and materially the same. ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए था कि एक सिविल सूट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज में पेंडिंग था ऑफ मध्य प्रदेश और कोशिश ये की जा रही थी कि दैट केस शुड बी ट्रांसफर टू दी हाई कोर्ट एट मद्रास, जहाँ पे इसी केस के पॉइंट पे एक केस पेंडिंग था और दोनों ही केसेस में जो इश्यूज थे वो मटेरियली कॉमन और सेम थे और इंटरडिपेंडेंट थे. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देयर इज नो कास्ट आयरन फॉर्मूला यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल द सिचुएशन एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड ग्राउंड फॉर ट्रांसफर एंड अ मियर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इन फेवर ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन अनदर कोर्ट albeit a material consideration may not always be a sure criterion justifying transfer. कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मटेरियल कंसिडरेशन है पर सोल ग्राउंड नहीं है ट्रांसफर का. इट इज अ मटेरियल कंसिडरेशन बट नॉट द सोल ग्राउंड ऑफ ट्रांसफर. वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ ट्रांसफर इज
that where two suits arise, common question of fact and law between the parties common to both suits are pending in two different courts. It is generally in the interest of justice to transfer one suit to other forum to be tried by the same court, with the consequent avoidance of multiplicity of the proceeding and the risk of conflicting decisions. Then the Supreme Court elaborated that principle governing the general power of transfer and withdrawal under section 24 of the CPC is that the plaintiff is dominus litis, matlab master of the suit, and as such is entitled to institute his suit in any forum in which the law allows him. The court should not lightly change the forum and compel him to go to another court, with consequent increase in inconvenience and expense of prosecuting his suit. A mere balance of convenience in favor of the proceeding in another court, albeit a material consideration, may not always be a sure criterion justifying the transfer. As compared with section 24, the power of transfer of civil proceeding to another court conferred under the new CPC under section 25 on the Supreme Court is far wider, and so is the amplitude of the expression expedient in the interest of justice, which furnishes a general guideline for the exercise of power. Whether it is expedient or desirable in the interest of justice to transfer a proceeding to another court is a question which depends on the circumstances of the particular case. All the exercise of this discretionary power cannot be imprisoned within straitjacket or cast iron formula uniformly applicable to all situations. Yet certain broad proposition as to what may constitute a ground for transfer can be deduced from judicial decisions. One of them is that where two suits raise common question of fact and laws between parties common to both suits, and it is pending in two different courts, it is generally in the interest of justice to transfer one of those suits to other forum to be tried by the same court, with consequent avoidance of multiplicity in the trial of the same issues and the risk of conflicting decisions thereon. फिर there was this case of Kulvinder Kaur versus Kandy Friends Educational Trust and others. In this case, the Supreme Court laid guidelines to exercise its power under section 24 of the CPC. Section 24 of the CPC के context में कुछ guidelines रखी थी. First is balance of convenience or inconvenience to the plaintiff or the defendant or witnesses. ठीक है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाएगा कि किसके पास कन्वीनियंस या इनकन्वीनियंस जा रही है, और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट और विटनेसेस तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करेगा. सेकेंडली, convenience or inconvenience of a particular place of trial having regard to the nature of evidence on the points involved in the suit. फिर उसके बाद कोर्ट कंसिडर करेगा कि कहाँ पे, किस प्लेस पे, विद रिगार्ड हैविंग नेचर टू द एविडेंस, और जो सूट के पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किधर है, देखेगा कि वहाँ पे ट्रायल कौन सी जगह पे सबसे अच्छी तरीके से हो सकता है. थर्ड पॉइंट दैट इट विल कंसिडर इज इशू रेज्ड बाय द पार्टीज, क्या क्या ग्राउंड्स लिए हैं, क्या क्या इश्यूज हैं पार्टीज के बीच में. फोर्थ इज reasonable apprehension in the mind of the litigant that he might not get justice in the court in which the suit is pending. एक reasonable apprehension होना चाहिए, mere suspicion नहीं, reasonable apprehension, and that should be demonstrated by facts. Fifth point is important questions of law involved or considerable section of public interested in the litigation. And the sixth point is interest of justice demanding the transfer of the case. ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना होगा जब भी आप सेक्शन 24 पे आंसर लिख रहे होंगे. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और इसके जो 6 पॉइंट्स हैं उनका ध्यान रखिएगा. अभी जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए कुलविंदर कौर वर्सेस कांडी फ्रेंड्स एजुकेशनल ट्रस्ट के केस में, उसमें 2 पॉइंट्स आप और ऐड कर लीजिएगा जो उसके केस में नहीं है पर उसके केस में जो प्रेसिडेंट कोर्ट हुए हैं उससे निकलते हैं. That is that the plaintiff is the dominus litis and he has the right to choose his own forum, इस ground को भी consider करेगा. And secondly, it is power and the duty of the court to assure a fair trial and proper dispensation of justice. ठीक है, ये ड्यूटी है कोर्ट की. ये भी 2 ग्राउंड लिख लीजिएगा कि apart from these grounds as held in the precedent, 2 other grounds can be added, और तब आप ऐड कर दीजिएगा. ठीक है, अब मैं कुछ इलस्ट्रेशन देता हूँ जहाँ पे ट्रांसफ़र अलाउ हुआ है. फर्स्ट इज वेयर देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द लिटिगेंट दैट ही माइट नॉट गेट जस्टिस इन द कोर्ट इन विच द सूट इज पेंडिंग. ये पॉइंट अगर एक बार प्रूव हो गया
ट्रांसफरिंग कोर्ट के सामने, जो ट्रांसफ़र करने की पावर रखता है अंडर सेक्शन 24-25, तो केस ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स और कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन, ऐसी सिचुएशन में भी ट्रांसफ़र दिया जाता है। वेयर द जज इज इंटरेस्टेड इन वन पार्टी और इट इज प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट द अदर, वहां पे भी ट्रांसफर हो जाता है। Where common question of fact and law arise between the parties in two suits, there the court chooses the most appropriate venue of trial, और वहां पे ट्रांसफर कर देता है केस को। Where the balance of convenience is there, let us suppose where the property is situated or parties and their witnesses resides or account books are kept, or where majority of the evidence can be gathered and can be easily presented, that is also one of the grounds of transfer. Where two persons have filed suit against each other on the same cause of action, in those situations transfers have been allowed. Where transfers are there to avoid delay and unnecessary expense, there also transfers have been allowed. Where important questions of law are involved or considerable section of public are interested, there also transfer has been allowed. Where transfer prevents abuse of the process of the court, there also transfer has been allowed. Where the transfer is necessary for only one adjudication of a particular controversy, there also the transfer has been allowed. Now where the transfer is not allowed, इन grounds पे नहीं allow हुआ था कि that the opposite party is a man of influence, इस ground पे transfer नहीं allowed हुआ था क्योंकि influence है society में, तो ये कोई transfer का ground नहीं है. Secondly, mere fact that the court is situated at a long distance from the residence of the applicant, ये भी कोई transfer का ground नहीं है. Mere fact that the presiding officer belongs to a community rival to the applicant, वो rival community से presiding officer या judicial officer belong करता है, ये भी कोई transfer का ground नहीं है. Next is mere fact that the judge has decided a similar point in previous case is also not a ground for transfer. कि अगर एक पार्टी बोले कि अरे इन्होंने एक ऐसा ही केस पहले डिसाइड किया था और उसका डिसीजन ऐसा दिया था जो एडवर्स आया था मेरे जैसी पार्टी का उस केस में, तो ऐसे बेस पे अगर वो एप्रीहेंशन ऑफ बायस कंसिडर करता है कि क्योंकि उन्होंने उस केस में ऐसा डिसीजन दिया था तो मेरे भी केस में ऐसा ही डिसीजन देंगे, तो ये ग्राउंड ऑफ ट्रांसफ़र है, इट्स नॉट. अगर वो ऐसा सोचता है तो इट इज़ नॉट अ ग्राउंड ऑफ ट्रांसफ़र. ठीक है. सो रिमेंबर, मियर फैक्ट द judge has decided a similar point in previous case is not a ground of transfer. Then mere balance of convenience to the applicant, only that being there and nothing else, is not a ground for transfer. ध्यान रखिएगा, it is a determinative criteria, not a sole criteria. Then prejudice of a judge against the party's pleader not likely to affect a party is not a ground for transfer. Then judge making adverse remarks regarding merits of the case, not a ground for transfer. Allegations of the apprehension against fair trial without furnishing particulars is not a ground of transfer. यहाँ पे reasonable apprehension नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक suspicion या सिर्फ allegation of apprehension है without any particulars or without there being any material on record. तो ऐसी situation में that is not a ground for transfer. On counsel losing temper and using unparliamentary language, the judge ordering adjournment is also not a ground of transfer. अब ये जितने भी मैंने आपके illustration दिए ये सारे केस लॉ से निकलते हैं, तो ऐसे में आपको केस लॉ जानने की यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ illustration आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या क्या हुआ था और इनमें क्या क्या चीज़ें थी. ठीक है. सो दैट यू गेट अ बेसिक आइडिया कि कहाँ पे अलाउ किया गया, कहाँ पे नहीं अलाउ किया गया ऑन द इलस्ट्रेटिव केसेस, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं. जैसे कि एक और केस बताता हूँ. ये केस है आपका दीपक कुमार सिंह वर्सेस मनी प्रभा, डिसाइडेड ऑन 16 मई 2017. अब इसमें जज के बायस होने का भी ग्राउंड लिया गया था कि जज साहब बायस्ड हैं, उन्होंने एडवर्स रिमार्क मेरे खिलाफ रखे और मैंने कई इंजंक्शंस डिमांड किए थे और मैंने केस लॉ भी बहुत कोर्ट किए थे, पर उन्होंने मेरे फेवर में इंजंक्शन नहीं दिया. साथ में इन्होंने ये भी कहा कि 3 साल से उन्होंने केस रख रखा है और केस नहीं डिस्पोज ऑफ किया, दिस इज़ अ ग्राउंड फॉर ट्रांसफ़र. एमपी हाई कोर्ट ने कहा नो, इट इज़ नॉट अ ग्राउंड फॉर ट्रांसफ़र, और एमपी हाई कोर्ट ने वही केस लॉ कोर्ट किए जो मैंने अभी आपको बताया, मेनका संजय गांधी वर्सेस रानी जेठमलानी, सुब्रमण्य स्वामी वर्सेस रामकृष्ण हेगड़े,
योर द केस ऑफ कुलविंदर कौर वर्सेस कांडी फ्रेंड्स एजुकेशन ट्रस्ट, ये सारे कोट करते हुए बोला कि दीज आर नॉट द सफिशिएंट ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसफर। कोर्ट ने सीधे उसको बोला, हाई कोर्ट ने उसको सीधे बोला कि आप सिर्फ अपने फेवर में इंजंक्शन नहीं गेन कर पाए और आपका केस पेंडिंग रह गया, तो आप सोच रहे हैं कि केस ट्रांसफ़र कर देना चाहिए क्योंकि जज हमारे खिलाफ बायस है। दैट इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच टू इट। उन्होंने फिर बायस पे भी थोड़ा एलैबोरेट किया कि देखिए, बायस इज़ अ सेकेंड लिम ऑफ नेचुरल जस्टिस। The prima facie, no one should be a judge in what is to be regarded as sua causa, whether or not he is named as a party. The decision maker should have no interest by the way of gain or detriment in the outcome of proceeding. Interest may take many forms. It may be direct, it may be indirect, it may arise from personal relationship or from a relationship which is with the subject matter, from a close relationship or from a tenuous one. और अगर जज एक्चुअली में बायस हो गया तो फेयर ट्रायल हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन बायस का मतलब ये नहीं है कि जज के दिमाग में प्री कंसेप्शन या कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द जज इज नॉट टू एक्ट like an infant or like a blank piece of paper, because we are born with predispositions, and much harm can be done by the myth that merely by taking oath of an office as a judge a man ceases to be human and strips himself of all predilections and become a passionless thinking machine. ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जो इस केस में जो ट्रांसफ़र एप्लीकेंट थे वो सिर्फ बायस इस बात पे ही एलेज कर रहे थे कि उनके फेवर में इंजंक्शंस नहीं दिए और क्या कहते हैं, केस को बहुत टाइम के लिए पेंडिंग रखा। तो हाई कोर्ट ने बताया कि प्रेसिडेंट और लॉ के बेसिस में आप जो भी ग्राउंड्स कह रहे हैं ना, वो सारे ऐसे ग्राउंड्स नहीं है जिस पे आपको ट्रांसफ़र की रिलीफ मिल सके, ठीक है। और आप जो कर रहे हैं दैट इज़ बॉर्डर लाइनिंग कंटेम्प्ट, क्योंकि जज अगर बायस नहीं है और उसके खिलाफ बायस बोलना कि वो बायस्ड है और या बोलना कि यू आर नॉट अ करेक्ट पर्सन, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बॉर्डर लाइन कंटेम्प्ट भी हैं। तो वार्न भी किया था इस केस में। अब सवाल उठता है कि क्या ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र अपीलेबल है या नहीं। अब देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए, ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र नाइदर अफेक्ट्स द मेरिट ऑफ द कंट्रोवर्सीज बिटवीन द पार्टीज टू द सूट नॉट टर्मिनेट्स और डिस्पोजेस ऑफ द सूट और एनी ग्राउंड। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसफ़र इज नॉट अपीलेबल, वो अपीलेबल नहीं है। हाउएवर, order of transfer is a case decided within the meaning of section 115 of the CPC. Therefore, it will be open to revision provided that the conditions laid down for revision are satisfied. ठीक है। अब अक्सर एक सिचुएशन आती है रेक्यूजल ऑफ जजेस को लेके, ठीक है, कि कभी कभी आप देखते होंगे, ये ट्रांसफ़र से हट के ज़रा बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक पार्टी कहती है कि आप रिक्यूज़ कर जाइए क्योंकि आप इस केस से किसी तरीके से रिलेटेड हैं, जज से कहते हैं, या आप हो सकता है बायस हो। ऐसे ग्राउंड्स होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, एक प्ली ऑफ रिक्यूजल लॉयर्स लेते हैं जजेस के सामने। तो इसका क्या लॉ है? अब इसके कंटेक्स्ट में मैं अभी आपको एक जजमेंट बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 वॉल्यूम नंबर 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 808, जहाँ पे जस्टिस केहार को क्या कहते हैं रिक्यूज़ करने की एक प्ली ली गई थी। उनसे पहले जस्टिस दवे थे, उनसे बोला गया था कि आप रिक्यूज़ कर जाइए, और रिक्यूज़ कर गए थे, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट लिया गया था कि एनजेएसी अगर होगा तो उसमें तो आप सीनियर मेंबर होंगे, तो आपको तो इंटरेस्ट है, सो यू कांट बी देयर। तो इस केस में फिर जब जस्टिस केहार आए तो उनसे भी ये बोला गया था कि आप भी सीनियर मेंबर होंगे, आप भी एनजेएसी के मेंबर बनेंगे, सो यू शुडंट सिट इन द बेंच। तो लॉ बताया गया था कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिक्यूजल। उसमें यह बताया गया था, जज में रिक्यूज एट हिज ओन फ्रॉम अ केस इंटरेस्टेड टू हिम बाय द चीफ जस्टिस। दैट वुड बी अ मैटर ऑफ हिज ओन चूजिंग, बट द recusal at the asking of litigating party unless justified must never be acceded to. समझे? Must never be acceded to, for that would give the impression that the judge has been scared out of the case just by the force of the objection. A judge, before he assumes his office, takes an oath to discharge his duties without fear or favor. He would breach the oath of office if he accepts a prayer for recusal unless justified. These were the words of the Supreme Court in that case. You should always remember that it is the constitutional duty of every judge
to decide the matters not only without favor but also without fear. That is the oath that judges take. आप भी जब जज बन जाएंगे तो ये oath लेंगे. So insinuations of bias or prejudice founded on irrelevant or flimsy grounds ought to be dealt with sternly, and the court ought not to bow down to such instances of browbeating and recuse itself on the plea of remaining insouciant. ठीक है? The court ought not to bow down to instances of browbeating and recuse itself on the plea of remaining insouciant. ठीक है, insouciant का मतलब होता है showing casual concern, casually recuse कर लिया. ऐसे नहीं करना चाहिए. Casually किसी ने plea ली और जज साहब recuse कर गए. That shouldn't happen. A judge dealing with a less is litigation, is required not only to see that a cause is dealt with fairly, but also he has to ensure that the judicial process is insulated from machinations of scheming parties and majesty of justice is preserved. A party to a list, particularly an advocate, who seeks to circumvent the judicial process through various subterfuges of delay and belated pleas of recusal, ought not to be encouraged by a mechanical acceptance of such a plea on its face value, but a deeper scrutiny as to its tenability in law and fact is necessary before it can be accepted and acted upon. I am again quoting Supreme Court Advocates on Record Association case. उसमें Justice Kurian Joseph in para 74 of that judgment says, there may be situations where mischievous litigants wanting to avoid a judge may be because he is known to them to be very strong and thus making an attempt for forum shopping by raising baseless summation on conflict of interest. मैं आपको बता चुका हूँ forum shopping is bad. The Constitutional Court of South Africa in the precedent of the Republic of South Africa versus South African Rugby Football Union has made two relevant observations in this regard, and I quote them. Although it is important that justice must be seen to be done, it is equally important that the judicial officers discharge their duty to sit and do not, by acceding too readily to suggestion of appearance of bias, encourage parties to believe that by seeking the disqualification of the judge, they will have their case tried by someone who they think to be more likely to decide the case in their favor. End quote. It needs to be said loudly and clearly that the grounds of disqualification is a reasonable apprehension that judicial officer will not decide the case impartially or without prejudice, rather than he will decide the case adversely to one party. ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन का क्या है? जब बायस होती है तो कैसे ऑपरेट होगी करती है? ये कि जो जज है ना वो इम्पार्शियली डिसाइड नहीं कर सकता या विदाउट प्रेजुडिस नहीं डिसाइड कर पाएगा. ये ग्राउंड नहीं है कि ही विल डिसाइड अ केस एडवर्सली टू वन पार्टी. सो अल्टीमेटली the question is whether a fair-minded and reasonably informed person on correct facts would reasonably entertain a doubt on the impartiality of a judge. Very prudent man का test है. The reasonableness, the apprehension must be assessed in the lights of oath of office he has taken as a judge to administer justice without fear or favor, affection or ill will, and his ability to carry out the oath by reason of his training and experience, whereby he is in a position to disabuse his mind of any irrelevant personal belief or predisposition or unwarranted apprehensions of his image in public or difficulty in deciding a controversial issue, particularly when the same is highly sensitive. So इस सिचुएशन में you get a basic idea कि जो recusal की जो pleas आप अक्सर देखते हैं उसका लॉ क्या है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये जो लॉ है ये सेम है on the constitutional side also, on the criminal side also, on the civil side also. recusal का जो लॉ है हर जगह के लिए सेम है. ठीक है, अगर जज को खुद लगता है उसे recuse कर जाना चाहिए तो recuse कर जाएगा, merely on the plea of party नहीं करेगा. That is up to the judge whether he wants to or not. And if the party again and again pesters a judge, you know, you should recuse, तो contempt की proceeding ऐसी पार्टी के खिलाफ initiate की जा सकती है या पार्टी पे exemplary cost भी ठोके जा सकते हैं. ठीक है, that is allowed. मैंने कल आपको बेंच हंटिंग के बारे में बताया था. ये जो रेक्यूजल की प्ली है ना, ये भी वन ऑफ द फॉर्म है बेंच हंटिंग का, कि जजेस को तब तक रेक्यूज करवाते रहेंगे जब तक ऐसा जज उनको ना मिल जाए जो उनके फेवर का हो. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म जिससे
बेंच हंटिंग की जाती है। वैसे बेंच हंटिंग प्राइमरली ऐसे की जाती है कि जो पेपर्स होते हैं, कोशिश की जाती है कि जो पिटिशंस होते हैं उसी जज के सामने जाए जो उनको लगता है उनके फेवर का है। तो ये बेंच हंटिंग होता है। एक होता है फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग भी मैं कल बता चुका हूँ, जब आप कोर्ट ही अलग अलग चूज़ कर रहे हैं, जिसके पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं किया उसके सामने आपने सू कर दिया, दैट इज़ फोरम शॉपिंग। ठीक है। ऑल इन ऑल इन सारी चीज़ों का पर्पस जो होता है ये हमेशा इंसीडियस होता है, चाहे वो बेंच हंटिंग हो चाहे फोरम शॉपिंग हो, ये इंसीडियस पर्पस होते हैं। ठीक है। इनके पर्पस आर इंसीडियस, they run counter to the law, so that is why they should be nipped in the bud, and lawyers and litigants should never be allowed to indulge in such a mode of conduct, because if they are allowed to indulge into such a mode of conduct, that would run counter to the demands of justice. अब कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताता हूँ जो जजेस को लेके है, जो स्पेशली सबॉर्डिनेट कोर्ट के जजेस को लेके, कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए जब एलिगेशंस ऑफ बायस वाली बातें हों उनके खिलाफ, व्हाट कंडक्ट दे शुडंट इंडल्ज इन। एक केस आपको बताता हूँ, दैट इज द केस ऑफ श्रीमती कौशल्या देवी वर्सेस श्री मूलराज। इट वाज डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ठीक है। और ये वैसे है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड, पर है ट्रांसफर प्रोसीडिंग। तो ऑल इन ऑल चीज़ें सिमिलर है। अगर यही कंडक्ट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आप सिविल केस में भी करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ वही ऑब्जर्वेशन करेगा जो इस केस में किया है। अब इस केस में हुआ क्या था, ये जो पेटिशनर थी, शी वॉज बींग ट्राइड अलॉन्ग विद 3 अदर पर्सन इन द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ऑफ दिल्ली। ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ इनिशिएट की गई थी फॉर वन मैटर और दी अदर। इन्होंने ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स के लिए अप्लाई किया। अब जब शुरुआत में इन्होंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था ट्रांसफ़र का, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे एडजर्न कर दिया था कुछ टाइम के लिए और बोला था कि आप सेशन जज के पास चली जाइए और सेशन जज अगर आपका केस ट्रांसफ़र कर दे तो इट्स ओके। ठीक है। अगर आपको वहीं से रिलीफ मिल जाएगी तो यहाँ से रिलीफ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सेशन जज ने क्या किया, केस एक दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर दिया। पर जो दूसरा मैजिस्ट्रेट था उसने भी जब केस देखा तो उसने अर्लियर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को मॉडिफाई करने का कोई ज़रूरी कॉज नहीं समझा और बोला कि इन जो पार्टीज़ हैं और जो पिटिशनर है उसको उसकी कोर्ट में आना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में जो पिटिशनर थी वो फिर डर गई। ध्यान रखिए क्रिमिनल केस की बात कर रहे हैं, सिविल केस नहीं है, तभी आई एम यूजिंग द टर्म मैजिस्ट्रेट। सिविल केसेस में सिविल जज होता है। तो जो मैजिस्ट्रेट है, अब इस केस पे आता हूँ वापस, जो मैजिस्ट्रेट है उसने कहा कि भाई मैं फॉर्मर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं करूँगा, आपको हमारी कोर्ट में आना पड़ेगा। तो अब ये फिर परेशान, ये फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि केस किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। ठीक है। इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट ऑफ सम अदर कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट। अब जो पिटिशनर थी उनका मेन पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो उनके खिलाफ कंप्लेंट है वो फ्रिवलस है, और उनके खिलाफ वो कंप्लेंट इसलिए फाइल हुई है बिकॉज शी हैपन्स टू बी अ मदर इन लॉ ऑफ मिस्टर आरपी कपूर, जिसने चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को नाराज़ किया है। ठीक है। ये इनका ग्राउंड था। फिर पिटिशनर ने कहा कि पिटिशनर हरसेल्फ इज 61 ईयर्स ओल्ड and she has been involved in several cases along with her son-in-law Mr. Kapoor. Her grievance appears to be that putting the case of complainant at its best, the facts alleged by him in his complaint may perhaps constitute a civil dispute, but the facts have been deliberately twisted and a criminal complaint has been made to harass the petitioner. तब पिटिशनर कह रही थी कि अगर आप सारी कंप्लेंट को फेस वैल्यू पे देखें तब भी सिविल डिस्प्यूट बन रहा है, लेकिन फैक्ट्स को ट्विस्ट करके ज़बरदस्ती इसको क्रिमिनल लॉ के एम्बिट में लाया गया है जिससे हैरास किया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन एडमिट कर लिया और एक इंटरिम स्टे ग्रांट कर दिया पिटिशनर को। बोला कि इंटरिम स्टे दे रहे हैं जब तक हम इस पर एक फाइनल हियरिंग ना कर लें कि आपकी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का करना क्या है। अब इस केस में क्या हुआ कि एक एफिडेविट फाइल हुआ ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ जो केस ट्राई कर रहा था। ठीक है। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ने खुद एफिडेविट दायर किया। अब ऑर्डिनरी कोर्स में क्या होता है कि एफिडेविट किसी ऐसे पर्सन को फाइल किया जाना चाहिए वो रिप्रेजेंट्स द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। बट ये नहीं समझ में आ रहा था कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने मैजिस्ट्रेट को कैसे रिक्वेस्ट कर दी टू हिमसेल्फ मेक द एफिडेविट, और उससे भी ज़्यादा ये नहीं समझ में आ रहा था सुप्रीम कोर्ट को कि मैजिस्ट्रेट ने मान कैसे लिया एफिडेविट देने के लिए। व्हाई डिड ही एक्सेप्टेड दैट रिक्वेस्ट। अब बात ये थी कि पिटिशन के अंदर तो जो
petitioner है, ट्रांसफ़र petition में जो petitioner था उसने तो कोई ऐसी बातें नहीं बोली थी जो magistrate के खिलाफ हो. Magistrate के reference में उसने कोई personal allegation नहीं लगाए थे. Then why the magistrate is personally giving an affidavit in this case? अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, हम ये सोच सकते थे कि जब एक बार पिटिशनर को लगा कि वो सेशन जैसे तो ऑलरेडी ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन ले चुकी थी और फिर केस सेकंड मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र हुआ था, तो हम एक बार ये सोच सकते थे कि हो सकता है कि पिटिशनर अपने फेवर में चीज़ें चूज़ करने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन अब आपने जो सेकंड मैजिस्ट्रेट है, आपने खुद जब इस केस में एक काउंटर एफिडेविट डाल दिया है, तब अब केस कॉम्प्लिकेट हो चुका है. ठीक है. अब दिक्कत ये थी कि ये जो सेकंड मैजिस्ट्रेट था, इस जिसके पास केस सेशन जज ने ट्रांसफ़र किया था, इसने अपने एफिडेविट में क्या लिखा था? इसने अपने एफिडेविट में ये एलिगेशंस लिखे थे कि अगर आप कंप्लेंट को देखें तो आप पाएंगे कि ये क्रिमिनल लाइबिलिटी बन रही है, और उसके बाद मैजिस्ट्रेट खुद वो ग्राउंड्स और आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है एफिडेविट में जिसके हिसाब से प्रूव होगा कि ये क्रिमिनल लाइबिलिटी है. अब देखिए, मैजिस्ट्रेट ने ये एफिडेविट दे दिया, ये चीज़ तो कंप्लेनेंट भी देखेगा. तो कंप्लेनेंट क्या कर सकता है? एफिडेविट के ही ग्राउंड मैजिस्ट्रेट के सामने उठाए, मैजिस्ट्रेट मान लेगा, है ना. साथ में मैजिस्ट्रेट साहब ये भी कह रहे थे कि एग्जीक्यूटिव हैज नो इन्फ्लुएंस एज फार एज द डिपोनेंट कोर्ट इज कंसर्न्ड, और बोला कि देयर इज नो जस्टिफिएबल कॉज ऑफ एप्रीहेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर व्हिच विल जस्टिफाई द ट्रांसफर ऑफ हर केस फ्रॉम दिस कोर्ट. उनके कोर्ट से ट्रांसफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि उसके पास बहुत सारी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आज तक आई हैं, बट इट हैज़ नेवर कम अक्रॉस द केस वेयर द एलिगेशंस मेड इन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आर कंटेस्टेड बाय द एफिडेविट मेड बाय द लर्नेड मैजिस्ट्रेट who tries the case himself. Now it is true that if the petition for transfer allegations are made against the magistrate in regard to what he said or did during the course of the trial, and it appears that the said allegations required to be examined, then Supreme Court calls for a report from the magistrate, and when that report is called for, the magistrate no doubt gives his version in respect of the allegations made by the petitioner against him. But it is impossible to understand how the magistrate in whose court the proceedings in question are pending can rush into the arena and make an affidavit disputing the prayer made by the petitioner for transfer of the case. A transfer application can be opposed by the complainant if the proceedings have commenced at the instance of private complainant. It may be opposed by the state, but the magistrate in whose court the proceedings are pending should never forget that he is a judge and not a partisan for the administration or the prosecution. That is why it is inconceivable that he should make an affidavit like the present, traversing the ground set out by the accused person when an application for transfer is made by him or her. But unfortunately, that is precisely what has happened in the present case. The statement made by the learned magistrate in para 6 of his affidavit, to which we have already referred, clearly shows that the magistrate has assumed a partisan role and has purported to contest the plea which the petitioner wanted to raise in defense in respect of the charge level against her by the complainant. Unfortunately, in some parts of the country, the policy of separating judiciary from the executive has still not been implemented. Nevertheless, we are confident that even in areas where such separation has not taken place, the members of the judiciary are functioning without fear or favor. But when an instance like this, like the present one, comes to our notice, it naturally causes a considerable concern. The learned magistrate, who has been ill-advised to make the present affidavit, did not realize that when he entered the arena and made an affidavit on behalf of the administration, his statement that the executive has no influence in the court is apt to sound like an idle and meaningless thing. A little reflection would have satisfied him of the gross impropriety of his action in making the affidavit like the present. It is an elementary principle of the rule of law that the judges who preside over the trials, civil or criminal, never enter the arena. In criminal trials, particularly, it is of utmost importance that the magistrate who tries the case must remain fearless, impartial, and objective, and so no argument is required in the support of the proposition that if a magistrate chooses to make an affidavit challenging the application made by the accused person, whose case is pending in his court, makes the said affidavit on behalf of the administration, and the affidavit puts in strong pleas opposing the transfer, all the essential attributes of fair and impartial criminal trial are immediately put in jeopardy.
It is very much to be regretted that Delhi administration chose to request the magistrate to make the affidavit, and the magistrate accepted the said request and made the affidavit on the lines we have already indicated. That being so, even without considering the merits of the contention raised by the petitioner, we think it is expedient for the ends of justice that the case pending against the petitioner and the three other persons should be transferred from the learned subdivisional magistrate of Delhi to the court of competent jurisdiction in Saharanpur, UP. So you get an idea. अब इस केस में आप खुद देख रहे थे कि किसी भी तरीके से जो ट्रांसफर एप्लीकेशन थी वो ग्रांट नहीं होने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट ना ग्रांट करता, लेकिन चूंकि मैजिस्ट्रेट साहब ने खुद एक काउंटर एफिडेविट दे दिया, वो खुद अरीना में आ गए, वो खुद कंटेस्ट करने लगे मैटर कि क्यों नहीं ट्रांसफर करना चाहिए, क्यों केस क्रिमिनल है. इससे तो सारी चीज़ें बायस की और चीज़ें और एप्रीहेंशन तो और अराइज हो जाता है. तो उन्होंने बोला कि हम भाई ऐसे रिजेक्ट कर देते, आप जो बीच में कूद आए ना, इसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन, इसकी वजह से ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ग्रांट की जा रही है और ट्रांसफ़र करवा दिया गया. ऑलवेज रिमेंबर when you people will become the judge, and in fact it is very important that you should be aware regarding it when you are hearing the transfer matters or when you are writing about it, that the judge should never enter the arena. जज जो है किसी भी मैटर में कभी भी अरीना में एंटर नहीं करता. ही इज नॉट अ पार्टीशन ऑफ द डिफेंस और द प्रोसिक्यूशन, ही इज समथिंग अबव इट. जब कभी आप जज का वो देखिएगा, जज हमेशा ऊपर बैठा रहता है. प्रोसिक्यूशन और जो डिफेंस होते हैं वो जज के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज ये दिखाया जाता है कि जो जज है ही इज रिजन अबव देम, ही इज अबव योर पेटी प्रेजुडिसेस, ही इज अबव द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर. ही इज अबव एनी सॉर्ट ऑफ प्रेजुडिस विच माइट अफेक्ट द ह्यूमन माइंड. तभी वो ऊपर बैठाया जाता है. ही इज ऑन अ पेडेस्टल व्हाइल एवरीवन एल्स इज लोअर. हम जज को ऊपर देखते हैं और जज लुक्स डाउन अपॉन अस. ठीक है, तो एक तरीके से वो एक गॉडली पोजीशन है. ठीक है, इट इज़ अ डिवाइन पोजीशन. और डिवाइन पोजीशन में बैठ के अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे देन इट वुड नॉट सूट द पोजीशन एट ऑल. ठीक है, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा. केस लॉ मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि प्रिंसिपल जो इस केस लॉ से निकलता है, हालांकि ये है क्रिमिनल, ये सिविल पे भी अप्लाई होता है. ध्यान रखिएगा, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन एज अ मैजिस्ट्रेट, अगर आप सिविल जज है ना, तो कोई ट्रांसफ़र के लिए पिटिशन लगाए तो खुद ट्रायल में मत घुस जाएगा कि क्यों ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उससे यही दिखेगा कि यू आर मोर इंटरेस्टेड इन द केस. और जहाँ दिख गया कि जज इज शोइंग अ सुपर इंटरेस्ट इन द केस, वहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ बायस और दिखने लगेंगे. ठीक है, तो यू हैव टू अवॉइड इट, यू हैव टू अवॉइड दिस ट्रैप, जैसा कि इस केस में हुआ था. अभी हुआ क्रिमिनल केस में था, बट ऐसी चीज़ें सिविल केस में भी अराइज हो सकती हैं. अब एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये केस है 1963 का. ठीक है, तो तब तक सीआरपीसी नहीं आई थी, 1973 वाली सीआरपीसी नहीं आई थी. तब तक सीआरपीसी 1898 वाली चल रही थी. तो 1898 वाली में जो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में पूरी चीज़ें नहीं हटाई गई थी. तब आपका जो एसडीएम और जो आपके डीएम होते थे, इनका एक जुडिशियल साइड होता था, इनका एक एग्जीक्यूटिव साइड होता था. तो ये देख लिया जाता है जो जुडिशियल साइड के हैं उनको थोड़ा सेपरेट कर दिया जाता था और एक फंक्शन सिर्फ एग्जीक्यूटिव साइड का होता था. 1973 की सीआरपीसी ने पूरी तरीके से अलग कर दिया. वहाँ पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बिकेम द अदर थिंग और डीएम बिकेम द अदर थिंग. अदरवाइज दीज पावर्स वर वेस्टेड इन वन पर्सन. डीएम एक्टिंग ऑन जुडिशियल साइड एंड डीएम एक्टिंग ऑन एग्जीक्यूटिंग साइड वर डिफरेंट थिंग. तभी आप ये देख रहे हैं ना कि कोर्ट बोल रहा है कि कई जगह पे सेपरेशन नहीं हुआ है, ये उसी कंटेक्स्ट में बोल रहा है. 1973 के बाद सब कुछ एकदम अलग हो गया था. सो जस्ट इन केस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए कि किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट. अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल जो है ये सिविल लॉ पे भी लगता है. तो ध्यान रखिएगा व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट बायस एंड द एलिगेशंस ऑफ एप्रीहेंशन, तो उन सारी चीज़ों में यू must make sure that you do not allow the dust of the battle between the parties to cloud your own sense of the judgment. ठीक है, so that is it for today. I will see you tomorrow because this topic is finished comprehensively. इसके बाद हम लोग will start with parties to the suit. हम लोग order 1 और मेन चीज़ें फिर order के context में भी पढ़ना शुरू कर देंगे. ठीक है, so that is it for today.